Hello and welcome you all students. Dear students, good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, I am Abdul Chadhan. I welcome you all. Class 10, Subject Science, Chapter 2, Acids, Bases and Salts. Now we discuss. Today's topic is how strong are acids or base solution. We know how acid-base indicator can be used to distinguish between an acid and a base. We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen positive ion, hydrogen ion or hydroxide ion OH ion in solution. Can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Can we judge how strong a given acid or base is? कितना स्ट्रॉन्ग है कोई गिवन एसिड या कमजोर है वीक है? We can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators. जो कई सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है. The universal indicator show different color and different concentration of hydrogen ion in a solution. A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale is called pH scale. So we call potential of hydrogen pH scale. P is the pH stand for potence. जर्मन में पोटेंस कहते हैं जिसका मीनिंग होता है पावर. पोटेंस मतलब पावर. On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14. 0 to pH स्केल होता है 0 से 14 तक, जिसमें 7 होता है नंबर न्यूट्रल. जैसे आपने मैथ में नंबर लाइन पढ़े हैं, 7 नंबर हो गया है यहाँ पर न्यूट्रल. 7 से कम होते जाएंगे 6 5 4 3 2 1 0 8 9 10 11 12 13 14. Less than 7 acids and more than 7 bases. pH should be thought of simply as a number which indicate the acidic or basic number nature of solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. जितने ज्यादा हायर हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन होगा pH वैल्यू उतनी ही कम होगी. The pH of a neutral solution is 7. Value less than 7 on the pH scale represent an acidic solution and more than 7 has the value basic in nature. As the pH value increase from 7 to 14, it represents an increase in hydroxide ion concentration in the solution. That is increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with a universal indicator is used for measuring pH. The strength of acid and base depend on the number of hydrogen ion and hydroxide ion produced respectively. एसिड में हाइड्रोजन आयन बनते हैं तो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की संख्या बढ़ती जाएगी pH वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा. बेसिक इन नेचर 7 से बढ़ने पर pH स्केल, जिनमें बेस होता है, बेस का pH स्केल 7 से 14 के बीच में होता है. अब तक का रिप्रेजेंट सबसे बड़ा pH स्केल 14 है. तो pH स्केल का कैन यू नो से व्हाट वीक एंड स्ट्रांग बेसेस आर. जितना pH स्केल जितना कम होता जाएगा उतना ही स्ट्रांग एसिड होता जाएगा. pH स्केल जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा. अब pH वैल्यू जितनी 7 के पास होगी उतना ही एसिड
वीक होगा। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss about the importance of pH in our everyday life. Are plants and animal pH sensitive? Our body works within the pH range of 7 to 7.8. ह्यूमन ब्लड, हमारे शरीर का ब्लड का पीएच स्केल क्या होता है? हमारे ब्लड का पीएच स्केल होता है 7.4। तो मोर देन 7 तो बेसिक इन नेचर, हमारा ब्लड कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। तो हमारी बॉडी की पीएच रेंज है 7 से 7.8 के मिड। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। रेन वाटर का पीएच स्केल 5.6 से कम, यानी कि कैसा हो गया? एसिडिक इन नेचर, एसिड रेन कहते हैं जिसे। When acid rain flow into the river, जब इस तरह की कोई एसिड रेन रिवर में किसी में बारिश हो जाती है एसिड रेन, इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर, जिससे रिवर वाटर का पीएच रेंज भी गिर जाएगी और उसमें रहने वाले जीव जंतु एक्वाटिक लाइफ का जीवन प्रभावित होगा, उनके जीवन में कठिनाई आएगी क्योंकि एसिड मिल जाएगा उस वाटर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? आपके घर के आंगन में या आपके घर के पीछे जो मिट्टी पाई जाती है उसकी पीएच क्या है? पीएच रेंज हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये फाइंड करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी 2.12, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन ए टेस्ट ट्यूब, 5 ml उसमें वाटर डालना है। वाटर डालेंगे, कुछ बबल्स निकलेंगे, एयर होगी उसमें। इस एक्टिविटी को करें। पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम, हमारे शरीर में भी हम जो भोजन लेते हैं डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन सिस्टम के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम रिलीज होते हैं ग्लैंड्स से। हमारी बॉडी में भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। कुछ अगर उल्टा सीधा फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राई, फ्राइड फूड अगर खाया आपने, जिसकी वजह से हमारे ग्लैंड्स को ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करना पड़ता है उसे पचाने के लिए, तब एसिडिटी हो जाती है। जब कहते हैं ना हम मुझे एसिडिटी हो गई, यानी कि एसिड का रिलीज ज्यादा हुआ जिसकी वजह से परेशानी हो जाती है। कभी कभी पेन होने लगता है, इरिटेशन होती है। पीपल यूज बेसिस कार्ड एंटासिड, तो फिर क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं जिनमें बेस होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हाइटिश कलर के, व्हाइट कलर के लिक्विड सिरप आते हैं, जैसे डाइजीन है, ल्यूकेन है, एक्सेट्रा एंड सो मेनी। तो हम एंटासिड लेते हैं, जैसे इनो ले सकते हैं। क्यों लेते हैं? इस तरह की रेमेडी इसलिए लेते हैं, सजेस्ट करते हैं, पहले भी बताया था इस चैप्टर में, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो बेस एसिड से रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। These antacid neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base, is often used for this purpose. Next one, pH change as the cause of tooth decay. दांत गिरने का, दांत के गिरने का, दांत के टूटने का यही कारण है कि pH चेंज होना। हमारे माउथ का pH वैल्यू है 5.5, लोअर देन 5.5, any acidic in nature. Tooth enamel made up of calcium hydroxide, crystalline form of calcium phosphate.
हमारे दांतों में मेन क्या जरूरी है? प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कैल्शियम और फॉस्फेट, ये मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे दांतों के लिए। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे दांत होते हैं। हार्डेस्ट ऑर्गन है हमारा जबड़ा, जॉ। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इन कोरोडल व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, अगर माउथ का पीएच बिलो 5.5 से कम हो जाए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating। खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल अगर दांतों में रह जाते हैं, लंबे समय तक अगर रहते हैं तो जर्म्स क्रिएट करते हैं, सड़न होती है और हमारा माउथ का पीएच वैल्यू कम हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। तो इसके लिए हमें बेस्ट वे क्या है इससे बचने के लिए? बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद अपने मुंह को अच्छी तरह साफ करें। सुबह भी ब्रश करते हैं, शाम को भी ब्रश करके सोएं। रात में काफी देर तक 8-10 घंटे आप सो लिए, सोते हुए अगर कोई फूड पार्टिकल आपके दांतों में रह गया तो वो सड़न पैदा करेगा। तो टेक ए ब्रश ट्वाइस इन अ डे, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, एडेड इन योर डेली शेड्यूल to prevent this type of difficulties. Using toothpaste which are generally basic in nature for cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. Okay students, you should read this chapter carefully. We will discuss about the remaining part in the next video. Thanks a lot.